بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد حمد سلیم شہزاد سلیم شہزاد. معنی و اشارات معنی و اشارات. الفاظ معنی الفاظ معنی. مسموم آندھیاں مسموم آندھیاں. زہر بھری آندھیاں زہر بھری آندھیاں. مراد سخت پریشانیاں مراد سخت پریشانیاں. مراد آپ کے مخالفین مراد آپ کے مخالفین. دشمن دشمن. آپ سلم کے مخالفین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین. چراغ شمس آسا چراغ شمس آسا. سورج جیسا روشن چراغ سورج جیسا روشن چراغ. مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تشکیک تشکیک. تشکیک تشکیک. شک و شبہ شک و شبہ. گرداں ہونا گردہ ہونا. گردش کرنا گردش کرنا. گھومنا گھومنا. حرکت کرنا. حرکت کرنا. علم ربانی علم ربانی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا علم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا علم. علم ربانی. علم ربانی. صدق پیغمبر صدق پیغمبر. صدق پیغمبر صدق پیغمبر. سچائی کے پیغمبر. سچائی کے پیغمبر. مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ریت منظر ریت منظر. ریت منظر ریت منظر. وہ منظر جس میں ہر طرف ریت نظر آئے. وہ منظر جس میں ہر طرف ریت نظر آئے. نالین نالین. جوتیاں. جوتیاں. نالین گردوں قدر. نالین گردو قدر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان جیسی عظمت رکھنے والی جوتیاں. آسمان جیسی عظمت رکھنے والی جوتیاں. جس میں اتھر جس میں عطر. جس میں اتھر جس میں عطر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک جسم. پاک جسم. جسم مبارک. جسم مبارک. ستم گاران. ستمگاران. ستم گاران طائف. ستمگاران طائف. طائف کے ظالم لوگ. طائف کے ظالم لوگ. سم سم. زہر زہر. مسموم مسموم. زہر بھری. زہر بھری. نظم کے حوالے سے ذیل کی استثنائی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے. استثنائی استثنائی یعنی پسندیدہ، عمدہ، مناسب. استثنائی یہ عربی زبان کا لفظ ہے. استثنائی یعنی پسندیدگی. نظم کی صنف کا نام لکھیے. نظم کی صنف کا نام لکھیے. نظم کی صنف کیا ہے؟ نعت. کیا ہے؟ نعت.
نظم کی حیت کا نام لکھیے. نظم کی حیت کا نام لکھیے. نظم کی حیت کیا ہے؟ آزاد نظم. نظم. نظم میں آنے والے 2 ردیف اور قافیے لکھیے. ردیف: دھوپ میں. قافیے ہے: پتھر منظر اتھر. نظم کے واقعے کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کیجیے. نظم کے واقعے کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کیجیے. آپ کو نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے. آپ کو نظم کا خلاصہ کائے میں بیان کرنا ہے؟ آپ کے الفاظ میں بیان کرنا ہے. یعنی آپ کو نظم کتنی سمجھ میں آئے تو وہ آپ کو آپ کے الفاظوں میں پیش کرنا ہے. اسے خلاصہ کہتے ہیں. تو آپ کو مختصراً اپنے الفاظوں میں نظم کا واقعہ بیان کرنا ہے. جواب ہے اس کا نظم کا خلاصہ. سلیم شہزاد نے اس نعتیہ نظم میں بتایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے جب طائف گئے تو وہاں کے لوگوں نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی، بلکہ آوارہ لڑکوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی سے نکال دیں. نظم کا خلاصہ: سلیم شہزاد نے اس نعتیہ نظم میں بتایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے جب طائف گئے تو وہاں کے لوگوں نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی، بلکہ آوارہ لڑکوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی سے نکال دیں. سخت دھوپ کا عالم تھا. اس وقت سخت دھوپ کا عالم تھا. لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ جسم اتھر سے بہتا ہوا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں جم گیا. طائف سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب کے ایک باغ میں آرام کرنے کے لیے نڈھال ہو گئے تھے. آپ اس لیے آرام کرنے کے لیے رک گئے. اس باغ کا نام نخلا تھا. اس باغ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ حکم دے تو طائف کو پہاڑوں کے بیچ دبا دیا جائے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو ایسا کرنے سے منع فرمایا اور اپنے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج ان لوگوں نے اپنے تاریک دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور نہیں کیا. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ضرور ایمان لائے گی. شاعر نے نظم کی آخری سطروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا اور دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی سے یعنی احادیث سے، قرآن و حدیث سے سارا عالم اسلام کی روشنی سے سارا عالم جگمگاتا رہے. نظم کی تمہید اور اختتام پر اپنی رائے دیجیے.
काय पर राय देना है आपको? नज्म की तमहीद और इख्तिताम। नज्म की शुरुआत किस तरह की शायर ने और नज्म को ख़त्म किस तरह किया। जवाब, सलीम शहजाद ने इस नज्म की तमहीद में, सलीम शहजाद ने इस नज्म की तमहीद में कुफ्र व शिर्क के अंधेरों में, कुफ्र व शिर्क के अंधेरों में घिरे हुए माहौल को अंधेरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग के अमल को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग के अमल को उजाले बांटने निकला कहा है। ताइफ के लोगों का दिल कुफ्र व शिर्क की जुल्मत में डूबा हुआ था। ताइफ के लोगों का दिल कुफ्र व शिर्क की जुल्मत में डूबा हुआ था। नज्म के इख्तितामी हिस्से में शायर ने ताइफ के आवारा लड़कों को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माफ़ करने और दुआए खैर करने के अमल को बयान करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजराने दुरूद व सलाम पेश किया है। इस निशान से मुराद मुकम्मल फिक्रा मानी के साथ लिखिए। ये जो निशान आपको दिख रहा है आदि स्वाद का, तो मानी के साथ लिखिए इससे क्या मुराद है। ये अलामत और मुखफ़फ़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसके मानी हैं उन पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का दुरूद व सलाम हो। ज़ैल की तरकीबें जिनके लिए इस्तेमाल की गई हैं, ज़ैल की तरकीबें जिनके लिए इस्तेमाल की गई हैं उनके नाम लिखिए। ज़ैल की तरकीबें जिनके लिए इस्तेमाल की गई हैं उनके नाम लिखिए। जवाब, चिरागे शम्स आसा, सिद्ध के पैगंबर और फूल सा पैकर। चिरागे शम्स आसा, सिद्ध के पैगंबर और फूल सा पैकर, ये तीनों तरकीबें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुई हैं। लोग पत्थर हो गए, पत्थर उठाकर धूप में। मिसरे की शेरी सिन्फ का नाम लिखिए। लोग पत्थर हो गए, पत्थर उठाकर धूप में। इस मिसरे की शेरी सिन्फ क्या है उसका नाम लिखिए। जवाब, लोग पत्थर हो गए, पत्थर उठाकर धूप में। इस मिसरे की सिन्फ है सिन्फ़े तजनीस ताम, सिन्फ़े तजनीस ताम, सिन्फ़े तजनीस ताम, सिन्फ़े तजनीस ताम। वज़ाहत, इस मिसरे में लफ्ज़ पत्थर 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है और
इसके अलग अलग मानी हैं। पत्थर बतौर इस्म एक चीज का नाम है, और पत्थर होना महावरा है, यानी सख्त दिल होना। यानी कलाम में ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना जिसके दो मानी हों। नज्म से अपने पसंद के शेर या मिसरे की तशरीह कीजिए। पसंदीदगी की वजह भी लिखिए। पसंदीदा शेर। फूल से पैकर पे बरसाते हैं पत्थर धूप में। फूल से पैकर पे बरसाते हैं पत्थर धूप में। फूल से पैकर पे बरसाते हैं पत्थर धूप में। लोग पत्थर हो गए पत्थर उठाकर धूप में। लोग पत्थर हो गए पत्थर उठाकर धूप में। तशरी और वजह पसंदीदगी। ताइफ के आवारा लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार पत्थर बरसाए। इस मौजू पर नात के बहुत से अशार पढ़े। ताइफ के आवारा लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार पत्थर बरसाए। इस मौजू पर नात के बहुत से अशार पढ़े और सुने हैं, मगर लफ्ज पत्थर के मुकर्रर इस्तेमाल से इस शेर का जमालियाती पहलू उभर कर सामने आया है। जो हमारे दिली जज्बात को बहुत ही मुतासिर करता है। दर्ज झैल अल्फाज में से अल्फाज नक्ल कीजिए जो नज़्म में शामिल नहीं है। मसमूम, मासूम, कवाइफ, ताइफ, तशकीक, नालैन, माबैन, पैगंबर। नज़्म में इसमें से कुछ अल्फाज आए हुए हैं, कुछ नहीं। जो नज़्म में अल्फाज नहीं आए वो अल्फाज आपको मुंतखब करके लिखना है। जवाब है वो अल्फाज जो इस नज़्म में नहीं है। मासूम, कवाइफ, माबैन, पैगंबर। शहर जुल्मत में हमारे रोशनी करता रहे तेरा कलाम। मिसरे के खतकशीदा मुरादी मानी तहरीर कीजिए। तेरा कलाम से क्या मुराद है, इसके मुरादी माने आपको लिखना है, आपको तहरीर करना है। जवाब है आपकी अहादीसे मुबारका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसे मुबारका। नज़्म से नुमाया होने वाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत लिखिए। नज़्म से नुमाया होने वाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत लिखिए। रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन। नात से वावे अतफ की मिसालें तलाश करके लिखिए। नात से
वावे अतफ की मिसालें तलाश करके लिखिए। नात से वावे अतफ की मिसालें तलाश करके लिखिए। वावे अतफ की मिसालें, वावे अतफ की मिसालें, काय की मिसालें? मजनून वो काहिन, मजनून व काहिन, तशकीक वो गुमान, तशकीक व गुमान, वहम वो गुमान, वहम व गुमान। बयानात मुकम्मल कीजिए। क्या मुकम्मल कीजिए? बयानात मुकम्मल कीजिए। बयानात मुकम्मल कीजिए। लोग पत्थर बरसाते हैं खाली जगह पर, लोग पत्थर उठाकर खाली जगह हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ताइफ के लिए खाली जगह बन गए। अंधेरों में रोशनी होगी खाली जगह से, अंधेरों में रोशनी होगी खाली जगह से। ये खाली जगह आपको पुर करना है, खाना पूरी करना है। जवाब देखिए, लोग पत्थर बरसाते हैं फूल से पैकर पर, फूल से पैकर पर। लोग पत्थर उठाकर क्या हो गए? पत्थर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ताइफ के लिए रहमत की चादर बन गए। अंधेरों में रोशनी होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से। सिनत तजाद, ज़ैल के ये मिसरे पढ़िए, ज़ैल के ये मिसरे पढ़िए। ज़ैल के मिसरे पढ़ना है आपको। सिट प्रॉपरली, डोंट स्पीक। रात और दिन है पुरोए हुए मोती की तरह, रात और दिन है पूरे हुए मोती की तरह। वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला मगर, वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला मगर। अजब है ये असरारे वस्ल वो जुदाई। अजब है सारे वस्ल जुदाई। रात दिन, रात दिन, अंधेरे अंधेरों उजाले। अंधेरों उजाले। इन मिसरों में रात दिन, इन मिसरों में रात दिन, अंधेरे उजाले, वस्ल जुदाई, अल्फाज एक दूसरे की जिद हैं। जब मिसरे या शेर में, जब मिसरे या शेर में ऐसे मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो उस सिनत को तजाद कहते हैं, सिनत तजाद कहते हैं। कलाम में मुतजाद अल्फाज का इस्तेमाल सिनत तजाद कहलाता है। सिनत तजाद, जब मिसरे या शेर में, जब मिसरे या शेर में मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो उस सिनत को सिनत तजाद कहते हैं। याद कर लीजिएगा, जब मिसरे या शेर में, जब मिसरे या शेर में मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो उस सिनत को सिनत तजाद कहते हैं। याद कर लीजिएगा। सवाल है, हम्द और नात से सिनत तजाद की मिसालें तलाश करके लिखिए। आपको दोबारा हम्द का मुताला करना है और नात भी पढ़ना है, और इसमें जो आपको मिसालें सिनत तजाद की आपको मिलती हैं वो उसकी नकल कीजिए, वो नोट कीजिए। जवाब देखिए, हम्द में सिनत तजाद की मिसालें। क्लास में एकदम जितना आप खामोश बैठेंगे, बगौर सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो उतना ही आपको अच्छी तरह समझ में आता है। और एक बार आपने समझ लिए तो उसको बार बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ बच्चे बार बार गैर ज़रूरी बातें करते हैं। अक्लमंदारा इशारा काफियस तो खर्रा टेम्पा। अपने महवर पे है गर्दिश में अगर शम्सो कमर, अपने महवर पे है गर्दिश में अगर शम्सो कमर। इसमें शम्स व कमर जो है तो मुतजाद अल्फाज है, एक दूसरे की जिद हैं, उलट अल्फाज है, इसलिए ये मिसाल सिनत तजाद की है शम्स व कमर की वजह से। चांद सूरज तेरे औसाफ बयां करते हैं। इस मिसरे में
चांद सूरज ये एक दूसरे की जिद हैं, मुतजाद हैं, एक दूसरे के उलट हैं, इसलिए ये मिसाल सिनत तजाद की है। रात और दिन है पुरोए हुए मोती की तरह, रात और दिन है पुरोए हुए मोती की तरह, रात और दिन है पुरोए हुए मोती की तरह। रात और दिन है पुरोए मोती की तरह। इसमें रात दिन जो है ये मुतजाद अल्फाज है, इसलिए सिनत तजाद की मिसाल है। नात में सिनत तजाद की मिसालें देखिए। वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला, वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला। वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला। इस मिसरे में अंधेरों उजाले सिनत मुतजाद अल्फाज हैं। और नीचे फूल से पैकर पे बरसाते हैं पत्थर धूप में, फूल और पत्थर इसमें मुतजाद अल्फाज।